Hello student, today we will discuss about Colrat's law, right? The first question is write a note on a Colrat's law of a independent migration of ions and limiting molar conductivity of a strong electrolyte, right? So Colrat examined lambda m0 value for a several strong electrolyte and observed certain regularity, right? So he noted that the difference in a lambda m0 of the electrolyte NaX and Kx for any x is nearly constant. For example, if n is equal to Cl, so the difference between lambda m KCl minus lambda m NaCl, if x is equal to Br, then lambda m KBr minus lambda m0 NaBr. If x is equal to I, the difference between lambda m0 Ki and lambda m0 Nai, right, is equal to 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। मतलब कि जब हम लोग NaX और Kx दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं लैम्बडा m0 का, तो वो क्या मिलेगा, हमें नियरली कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो ये सब का हमें क्या मिला, जो डिफरेंस है वो नियरली कांस्टेंट मिला 23.4, राइट। अब हम लोगों ने ये जो पॉजिटिव आयन है वो सेम लिया, फॉर एग्जाम्पल NaBr माइनस NaCl, KBr माइनस KCl, राइट। तो लैम्बडा m0 वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दिस 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो वो भी हमें क्या मिला, ऑलमोस्ट सेम मिला। तो कॉलरस लॉ क्या है, तो बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन he enunciated Colrat's law of independent migration of ion, right? And law is a limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte, right? Means अगर कोई electrolyte है तो वो इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो दोनों का हमें इंडिविजुअली क्या करना है, सम करना है, कंट्रीब्यूशन का, राइट, उसकी मोलर कंडक्टिविटी का। तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा m0, राइट, फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। फॉर एग्जांपल इफ हम लोग NaCl की बात करें तो हमें क्या लेना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये दोनों का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो लैम्बडा m0 NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा Na प्लस प्लस लैम्बडा Cl माइनस, राइट। और ये दोनों की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी से हम लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, राइट। इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन अ डिसोसिएशन गिव्स V plus cation and V minus anion, right. Here V plus and V minus means number of cation and number of anion, right, respectively. Then its limiting molar conductivity is given by lambda m0 is equal to V plus lambda plus 0 plus V minus lambda minus 0, right. And here lambda plus 0, lambda minus 0 are the limiting molar conductivity of the cation and anion respectively, right. Next, what is weak electrolyte? So weak electrolyte means what? So electrolyte which give a minimum ionization in the aqueous solution, right, are known as a weak electrolyte. Explain the relation between a concentration of weak electrolyte and molar conductivity with a suitable graph. हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करके उसको एक्सप्लेन करना है रिलेशन को, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है CH3COOH, NH4OH, राइट। तो CH3COOH क्या है, वीक एसिड, NH4OH इज अ वीक बेस, राइट, आर एग्जाम्पल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। Lambda m of a weak electrolyte of solution and a concentration. For such electrolyte, the change in lambda m with the dilution is due to increase in the degree of dissociation, right, and consequently the number of ions in a total volume of solution that contain 1 mole electrolyte, right. And according to Ostwald law of a dilution, the conductivity of weak electrolyte solution is
significantly increase with a decrease in a concentration of solution with a weak electrolyte, right? मतलब कि अगर हमारे पास weak electrolyte है, उसका concentration अगर हम लोग decrease कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, तो कहते हैं conductivity of weak electrolyte solution वो क्या होगी, increase होगी, right? Next, एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी ऑन अ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा, तो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, राइट, इज अ लो एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके जो आयंस है उसका डिसोसिएशन क्या होगा, लो होगा, राइट। एंड सो चेंज इन अ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, तो वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी विथ द इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। एंड हैंस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, तो वो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन, राइट। अगर हम लोग जो सॉल्यूशन है उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड मोलर कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली, तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ आयंस, राइट। तो जैसे जैसे आयन इंक्रीज हो गया उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिला नहीं, कर्व मिला, राइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मेजरमेंट ऑफ ए, graph is not a linear, right, but it is curve. In this graph accurate slope is not observed, हम लोग यहाँ पे slope find नहीं कर सकते, right, and so we could not get a accurate value of slope and a, slope और a की value भी हमें नहीं मिलेगी, right। Second, यहाँ पे intercept भी नहीं मिलेगा, right। This graph does not possess intercept, so we can't obtain the value of a lambda m0, right, because there is a no intercept even at a zero concentration of lambda m value, right। अगर हम लोग concentration zero कर रहे हैं, right, तो भी हमें intercept यहाँ पे नहीं मिलेगा, okay। Next है given not on a measurement of a limiting molar conductivity of a solution of a weak electrolyte, right, at a definite dilution electrolyte dissociate completely, right, but at such a low concentration the conductivity of the solution is so slow, right, and that it cannot be measured accurately, right। तो उसकी वजह से जो उसका जो concentration है वो बहुत ही लो होता है, तो उसके लिए हम लोग वो मेज़र नहीं कर सकते, राइट। एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ लैम्बडा m0 कैन नॉट बी मेजर बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ अ ग्राफ। हम लोगों ने आगे जो ग्राफ किया लैम्बडा m वर्सेस c रेज़ टू हाफ, राइट, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ c, तो उसका ग्राफ भी, उसके ग्राफ से भी हम लोगों को लैम्बडा m0 की वैल्यू नहीं मिल सकती, राइट। एंड देयरफॉर लैम्बडा m0 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज obtained by using a Colroyd's law of independent migration of ion, right, and lambda m0 value can be obtained in the basis of individual lambda m value of a individual ion. Calculation of dissociation constant of electrolyte like acetic acid can be obtained from the value of lambda m0 and obtain lambda m value, okay। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन के ए एंड लैम्बडा m0, राइट, सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m0, राइट, एंड हियर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्बडा m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा m0 मीन्स लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, राइट। यहाँ पे हम लोग ने 11th में पढ़ा था कि Ka, राइट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर with acid is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. तो here C is equal to concentration of solution in a molarity, right? तो if we put the value of alpha, क्या है अल्फा की वैल्यू, C लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m0, तो क्या मिलेगा, C लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m0 स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m0। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लेंगे, एलसीएम, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, के ए इज इक्वल टू सी लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन लैम्बडा m0
इन ब्रैकेट लैम्बडा m0 माइनस लैम्बडा m, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया के, राइट। और अब ये इक्वेशन है तो रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा m, राइट। Explain the Colred's law of an independent migration of ion, right? तो क्या है? The law states the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of ion, anion and cation, right? जो anion और cation है उसका हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन जो है उनका, उसका हम लोग एडिशन करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है लैम्बडा m0 इज इक्वल टू v प्लस लैम्बडा m प्लस 0 प्लस v माइनस लैम्बडा m माइनस 0, राइट। तो हियर यहाँ पे हम लोग के बी आर की बात करें तो हमें k प्लस और बी आर माइनस दोनों की लैम्बडा m वैल्यू दी हुई है, उसका अगर हम लोग एडिशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्बडा m0 फॉर के बी आर, राइट। एंड सी इन दिस टेबल, या इस टेबल में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है ऑफ अ सम आयन, राइट। के प्लस Na प्लस H प्लस Ca प्लस 2 Mg2 प्लस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस CH3 COO माइनस HO4 2 माइनस, ओके। एंड नेक्स्ट राइट अ Colred's law एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ हमें स्टेटमेंट लिखना है, राइट। देन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कि लैम्बडा m0 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इफ हम लोगों को इंडिविजुअल आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो, राइट। मोर एवर फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू को यूज करके हम लोग के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा से हम लोग के ए की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। थैंक यू।